اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے کلاس نہم کی مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے سبق رشتہ ناتا۔ تو سب سے پہلے اس سبق کے حوالے سے کچھ ضروری وضاحت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد، محمد حسین آپ کا نام تھا اور آزاد تخلص تھا، اور ساتھ ہی ادبی کاوشوں کی وجہ سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ آپ نے اس مضمون، جس کا عنوان رشتہ ناتا ہے، اس رشتہ ناتا میں خدائے عز و جل کے عطا کردہ دنیاوی رشتوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن انسانی رشتوں سے جوڑا ہوا ہے دنیا میں، ان کی اہمیت کو واضح کیا، جس میں بنیادی رشتہ والدین کا ہے، اساتذہ کرام ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا پھپھی وغیرہ۔ آپ نے اس مضمون میں بتایا کہ خوشنودی خدا کے علاوہ دنیا کے کل فائدے اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں، اور یہ ہمیں اپنے دنیاوی رشتوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں، اور انہی فوائد کو قانون ادب کا نام دیا جاتا ہے۔ مصنف کے بقول ادب اور تعظیم یہ دو ضروری چیزیں ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کون ہمارا ادب کرے گا؟ یعنی اگر ہم دوسروں سے عزت سے پیش آئیں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، دوسروں کا ادب کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ان رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ ان رشتوں کے احترام کرنے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یعنی اگر ہم آج اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے یا ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کل کون ہمارا احترام کرے گا؟ مصنف جناب محمد حسین آزاد نے اس سبق رشتہ ناتا میں کیا خوب کہا ہے کہ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو مرتبہ مقام ہے، جو رتبہ ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، جس نے ہم سب کو اور اس کائنات کو تخلیق کیا، جس میں ہماری ضرورت کی تمام اشیاء اس کی تخلیق کردہ ہیں، لہٰذا اس کی عبادت اور اطاعت واجب اور فرض اولین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ہماری پیدائش اور حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہیں، یعنی ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ۔ اس لیے خدا کے بعد ان کی اطاعت، ان کا حکم ماننا، ان کی بات ماننا، ان کی پیروی، ان کی خدمت اولاد پر فرض ہے۔ ان کے احکام کی بجا آوری بھی ضروری ہے، اور یہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے اطاعت والدین کے تحت رہے، جو ماں باپ کے فرما بردار رہے، وہ بلند اقبال ہوئے۔ بلند اقبال ہوئے یعنی دنیا میں انہوں نے عزت حاصل کی، مقام و مرتبہ حاصل کیا، اور جو ان سے برگشتہ رہے، نافرمان رہے،
बेअदबी करते रहे, वो हमेशा बद इकबाल और जिल्लत का शिकार रहे, नाकाम रहे, बेइज्जत रहे, रुसवाई में मुब्तला हुए। खुदा और वालिदैन के गुफ्तगू के बाद तीसरा मर्तबा हमारे असातिज़े कराम का है, जो हमें इल्म की दौलत से बहरामंद फरमाते हैं। वालिदैन परवरिश जिस्मानी करते हैं, जिस्म की परवरिश करते हैं, तो उस्ताद परवरिश रूहानी करता है। उस्ताद अपने बच्चों की रूहानी नशोनुमा करता है, अपनी नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है, लिहाजा उसकी अताअत भी फर्ज है। इसके बाद हमारे ननिहाली और ददियाली रिश्तेदार भी हैं। ननिहाली रिश्तेदारों से मुराद मेरे बच्चों वो रिश्ते जो वालदा की निस्बत से वजूद में आते हैं, मसलन खाला, मामू, नानी, नाना वगैरह। और ददियाली रिश्ते वो रिश्ते जो वालिद की निस्बत से वजूद में आते हैं, जैसे चचा, फूफी, दादा, दादी वगैरह। इनका भी अदब व एहतराम हम पर फर्ज है। तो ये बात वाज़ेह होती है कि अदब व ताज़ीम जिंदगी के दो लाजमी जुज़्व हैं और इनके बगैर जिंदगी बेमकसद और बेकार है। इसके बाद जनाब हम सबक रिश्ता नाता के हिस्सा अलिफ पर मबनी कसीरुल इंतखाबी सवालात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला सवाल है मेरे बच्चों, रिश्ता एक पेवंद है, खुदाई, दुनियावी, लाजमी, मसनूई। दुरुस्त जवाब है अलिफ, खुदाई। दूसरा सवाल, जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है, बुजुर्गों के फैज़ परवरिश से हासिल होती है। ये जुमला जिस सबक से लिया गया, इसका उन्वान है अलिफ, अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पे शहीद, जीम रिश्ता नाता और दाल बूढ़ी काकी। दुरुस्त जवाब है जीम, रिश्ता नाता। तीसरा सवाल, रिश्तों की रियायत व पाबंदी को कहते हैं कानून फलसफा, कानून शहादत, कानून कीमिया या कानून अदब। जी मेरे बच्चों, जी दुरुस्त जवाब है दाल, कानून अदब। चौथा सवाल, निसाब में शामिल सबक रिश्ता नाता माखूज है अलिफ, मिरातुल उरूस से, बे मज़ामीन सर सैयद से, जीम मकालात मोहम्मद हुसैन आजाद या दाल मिट्टी का दिया। शाबाश, बिल्कुल सही। दुरुस्त जवाब है जीम, मकालात मोहम्मद हुसैन आजाद। पांचवा सवाल, अदब और ताजीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुजीर हैं। ये इबारत किस सबक से ली गई है? रिश्ता नाता, नजरिया पाकिस्तान, ऊह, शहीद। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब अलिफ, रिश्ता नाता। छठा सवाल है बच्चों, सबक रिश्ता नाता के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी या मिर्जा अदीब। वाह भाई, जबरदस्त, बिल्कुल बे मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल नंबर 7, बुजुर्गों की खिदमत से हासिल होती है खुदा की खुशनुदी, दुनिया की दौलत, इज्जतदार मुलाजमत या दुनिया की नेमतें। जी बिल्कुल अलिफ, खुदा की खुशनुदी, खुदा राजी होता है। आठवां सवाल, कौन सा शख्स बद इकबाल और जलील ख्वार रहता है? माँ बाप का फरमाबरदार, माँ बाप का नाफरमान, उस्ताद का नाफरमान या बुजुर्गों का नाफरमान? माँ बाप का नाफरमान।
सवाल नंबर 9, एक शख्स खुद ब खुद हासिल नहीं कर सकता कमाल जाती, जायदाद, नाम, मोहब्बत। दुरुस्त जवाब है अलिफ कमाले जाती। सवाल नंबर 10, माँ बाप के हुक्म को मानने वाला दरअसल ताजीम कर रहा है किसकी? खुदा की, बच्चों की, शैतान की, या बहन भाई की? माँ बाप के हुक्म को मानने वाला अलिफ खुदा की ताजीम कर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 11, माँ बाप के साथ इस काम में पहल करनी चाहिए, सलाम करने में, खाने में, बोलने में, या बैठने में? जी दुरुस्त जवाब अलिफ सॉरी बेटा, सलाम करने में। सवाल नंबर 12, बड़ा भाई बराबर होता है किसके? दोस्त के, बाप के, छोटा भाई, रिश्तेदार? बे राइट आंसर, बाप के बराबर होता है। सवाल नंबर 13, तुम अपने माँ बाप से खुदसर रहे, नाफरमान रहे, जिद्दी रहे, बेअदब रहे, तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे होगी कैसी? सरकश, नाफरमान, नालायक बचकर रहेगी, और नाराज। अलिफ राइट आंसर है सरकश रहेगी। तो जब हम अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे तो यकीनन हमारे साथ भी नाफरमानी का ही मामला किया जाएगा। सवाल नंबर 14, जब तुम डैश होगे तो इसी तरह तुम्हारे खुर्द भी तुम्हारी खिदमत करेंगे। कामयाब, छोटे, बड़े, इनमें से कोई नहीं। हिस्सा जीम इज द राइट आंसर, जब तुम बड़े होगे। सवाल नंबर 15, अपनी जरूरियात के लिए एक दूसरे के मोहताज हैं परिंदे, इंसान, चौपाए, या फरिश्ते? दुरुस्त जवाब हिस्सा बे, इंसान मोहताज है एक दूसरों के अपनी जरूरियात में, इंसान। नंबर 16, बच्चे की परवरिश मुमकिन नहीं अगर मोहब्बत ना हो तो? अलिफ बहन भाई को, बे दोस्तों को, जीम माँ बाप को, दाल पड़ोसियों को? एब्सोल्युटली राइट, शाबाश, जीम माँ बाप को। सवाल नंबर 17, मुहावरा मुकम्मल कीजिए। माँ बेटे दो जात और डैश एक जात। अलिफ खाला भांजा, फूफी भतीजा, नानी नवासा, या मामू भांजा? भांजा अलिफ से लिखा जाएगा, ठीक है जी। बे फूफी भतीजा, शाबाश। 18, सवाल नंबर 18, इनका रुतबा भी बाप के बराबर है। इमाम मस्जिद का, हाफिज कुरान का, उस्ताद का, मिर्जा अदीब का? जीम सही जवाब, उस्ताद का रुतबा। नंबर 19 सवाल, दुनिया की हर बात में नजदीकी और दूरी के हैं नजारे, रिश्ते, अहकामात, मजे? राइट आंसर बे रिश्ते। सवाल नंबर 20, तुम अपने माँ बाप से खुदसर रहे तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे डैश है। सरकश, नाफरमान, बचकर, नाराज? अलिफ राइट आंसर सरकश। सवाल नंबर 21, जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है डैश के फैज़े परवरिश से हासिल होती है? जवानों के, असातिज़ा के, बच्चों के, या बुजुर्गों के? दुरुस्त जवाब है जी शाबाश
हाँ, बुजुर्गों के फैज परवरिश से। ठीक। दाल। सवाल नंबर 22, जिस शख्स को बुजुर्ग की ताजीम की आदत होगी वो डैश की इबादत भी दिल से करेगा। अलिफ खुदा, बे दीन, ऑप्शन बे है दीन, जीम ईमान, दाल रिश्तों। दुरुस्त जवाब है अलिफ, खुदा की इबादत भी दिल से करेगा। नंबर 23, अव्वल मर्तबा बुजुर्गी का दुनिया में डैश का है, वालदैन का, असातिज़ा का, खुदा का, या इंसाफ का। दुरुस्त जवाब है हिस्सा जीम, खुदा का। सवाल नंबर 24, उस्ताद डैश से रूह को परवरिश और तालीम तरबियत देता है। अलिफ नेमत इल्म से, बे कलम से, जीम किताबों से, दाल बातों से। शाबाश। दुरुस्त जवाब अलिफ नेमत इल्म से। सवाल नंबर 25, जो डैश के हुकूक परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हुकूक नेमत को क्या पहचानेगा। अलिफ बहन भाई, बे दोस्तों, जीम माँ बाप, दाल रिश्तेदारों। दुरुस्त जवाब है शाबाश जीम माँ बाप। नंबर 26, माँ बाप को खुश करने से खुदा डैश होता है। अलिफ नाराज, बे राजी, जीम खुश, दाल गुस्सा। माँ बाप को खुश करने से खुदा राजी होता है। ठीक, खुदा खुश होता है। आपके किताब के एतबार से ये जवाब। नंबर 27, वालदेन के अहकाम फ़कत हमारे डैश के लिए हैं। अलिफ फायदे के लिए, बे नुकसान के लिए, जीम नाकामी के लिए, दाल जिल्लत के लिए। दुरुस्त आंसर अलिफ फायदे के लिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 28, डैश का रुतबा बाप के बराबर है। दोस्त, चचा, उस्ताद, मामू। दुरुस्त जवाब है जीम उस्ताद। अजीज तालिब इल्मों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो लेक्चर से आपने सबक रिश्ता नाता के बुनियादी नुकात, उसकी वजाहत को जहन नशीन किया और इस सबक के जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं इसके हवाले से आपकी रहनुमाई की गई। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगले लेक्चर में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।